اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ اپنی شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے، کس کے لیے کیا اہم ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت کہلاتی ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھتے ہیں، تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن
तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। आगे जाने वाले पीछे रहे हुए लोगों को कभी याद नहीं करते। मर्द कभी मजबूर नहीं होता। अगर वो औरत से सच्ची मोहब्बत कर ले तो वो उसे किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ सकता। दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इस पर साबिर और शाकिर ही चढ़ सकते हैं। जिंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। वालदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेंगी मगर फायदेमंद जरूर साबित होंगी। इंसान की ख्वाहिशात का प्याला इसलिए नहीं भरता क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। किसी बेकदर शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी जिंदगी के लिए ज़हनी मरीज बनाने के लिए काफी होती है। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक के हकीकी के ताल्लुक को समझ सकें। हर शख्स अपने महबूब की उंगली पकड़कर उसे अपने माजी की सैर जरूर करवाना चाहता है। असल बादशाही ये है कि आपके पास सबसे बड़ा इल्म हो और आप अपनी जिंदगी सबसे कमजोर आदमी के बराबर रखें। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी व अरीज कब्रिस्तान हो जहां वो दूसरों की गलतियों और खामियों को दफना आया करे। हसद का जज्बा एहसासे कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। अगर इंसान को मालूम हो जाए कि उसने कब कहां और किस किस को अपनी जुबान से तकलीफ दी है तो वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। गलत फहमी का अजाला सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई खास मकाम हो। जो औरत उस मर्द को ना संभाल सके जिसने उसे दिल से मोहब्बत की हो, ऐसी औरत बदकिस्मती की बहुत बड़ी मिसाल है। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। औरत अपनी उम्र के बारे में तब झूठ बोलना शुरू करती है जब उसका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। दुनिया में इससे बड़ा और कोई अजाब नहीं कि इंसान वो बनने की कोशिश में मुब्तला रहे जो कि वो नहीं है। जब लोग लिखना सीख जाएंगे तो मुख्तसर लिखा करेंगे और जब बोलना सीख जाएंगे तो अक्सर खामोश रहा करेंगे। वो हकीकी अमन और बलोगत का जमाना होगा। खुशियां अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करें कभी कोई गरीब का बच्चा खुश ना होता। हर किसी को सफाई ना दें, आप इंसान हैं, झाड़ू नहीं। जब तक इंसान दूसरे की जगह पर खड़ा ना हो उसे पूरी बात समझ में नहीं आती। मोहब्बत से गम और उदासी जरूर पैदा होगी, वो मोहब्बत ही नहीं जो उदास ना करे। रूह की गहराई से निकली हुई बात
रूह की गहराई तक जरूर जाएगी। फातिहा लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। ताल्लुक को बचाने के लिए 100 दलीलें देने से बेहतर है कि दिल पर पत्थर रख के जाने वाले को खुशी खुशी रुखसत कर दिया जाए। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। दौलत और ओहदे इंसान को सिर्फ आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा के लिए बुलंद रखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में चंद बातें सीखी हैं कि माँ बाप के अलावा कोई वफादार नहीं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता। इंसान जिस शख्स के लिए मुखलिस हो वो उसको दुख देता है। लोग अच्छी सीरत की बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। एक समझदार इंसान किसी की बिला वजह तनकीद और बेइज्जती को मुस्कुराकर टाल देता है। किसी ऐसी बात को मुस्कुराकर नजरअंदाज कर देना समझदारी है जो आपकी शख्सियत के खिलाफ हो। दो चीजें इंसानी रिश्तों में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, एतबार की किल्लत और शक की ज्यादती। इनकी मौजूदगी हर घर को तबाह बर्बाद कर सकती है। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती है, लेकिन बढ़ापा नहीं गुजरता। दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। अल्लाह तुम्हारी झोली को तब खाली करता है जब उसके पास देने के लिए कुछ बेहतरीन हो। सच बोलने का शौक हो तो अपने बारे में बोलें, दूसरों की जिंदगी आजाब मत बनाएं। निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी नजर आए। मोहब्बत में गैर की राय लेना हराम है। मांगी हुई मोहब्बत का मजा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। सच बोलना कोई कमाल नहीं, सच सुनना बहुत बड़ा कमाल है। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को जिंदा रखना और इज्जत देना अहम होता है।